Hello everyone, this is Saurabh Maran and once welcome you all on my YouTube channel Enjoy with Literature by Yascha. In this particular lecture, I will discuss in details about the use of will have to and shall have to. In my previous video, I had discussed the use of has to, have to and had to. Yeah, so I hope that whatever video had I made before it, yeah, that video would be and is much helpful for all of you. And this video also that today I will discuss on use of will have to and shall have to. This video will also much helpful for all of you. Yeah, so I hope that this video will much helpful for all the beginners, so don't forget to watch this video. And before starting this video, I request to you all who hasn't subscribed this channel, please do subscribe and share more and more. Yeah, सो आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू को लेकर के। या नो, ये जो यूज है विल हैव टू एंड शैल हैव टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, खासकर बिगनर्स वालों के लिए, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। एंड आई होप कि वट एवर मीन्स इन वट मैनर शैल आई टीच टू यू। या this manner will very helpful, this will help you much to understand, yeah, in easy way. Yeah, so I will try to do my best here. So let's start this video. Yeah, चलिए अच्छा हम बात करते हैं यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू को लेकर के। यूज ऑफ विल हैव टू and shall have to. Many of you already have read this use, and do you know you have read this one, but you don't know, either you know this may also, you don't know that how to use of this use in the right way. Yeah, suppose that if someone is saying to you that you have to do this one, you have to. Yeah, but when do we talk in comparison, we use in our daily language, no I have to do that. That's it. I think that will not, that will be I will have to do that or I shall have to do that. Yeah, because there is something difference between use of has to, have to, use of is to, am to, and use of will have to and shall have to. Little difference, and this is big one also. When do we talk about use of is to, am to, are to, and has to, have to, just we see two things. First one, in is to, am to, are to, you uh, find this one that you see the needed इन यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू। भाई ना लेने में नीडेड होती है, ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, है कि नहीं। मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि जब हम ना है नी है ने वाले वाक्यों को हल करेंगे तो वहाँ पे फिक्स है नीडेड शो होगा। नीडेड का मतलब क्या होती है कि जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे विद्यालय जानी है, राइट। तो आई इन नॉर्मल सेंस वी यूज दैट आई हैव टू गो टू स्कूल, बट मुझे विद्यालय जाना है एंड मुझे विद्यालय जाना पड़ता है ना। दोनों भाई डिफरेंस है, यू टेक इट और नॉट, बट डिफरेंस तो श्योर है। when do we talk about use of is to, am to and ought to, मुझे विद्यालय जाना है एंड मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, तो ना है में हमारी नीड है, भाई जाओगे नहीं ना, यू विल मिस। एंड जाना पड़ता है ना, यू डोंट वाना यार, you don't want to take that class, you don't want to go to school, but this is your wages, आपको मजबूरी है, आपको करना तो पड़ेगा ना। वो होता नहीं है यार, आजकल तो ठंडी का मौसम भी चल रही है, क्या करें, वो होता है बोलते हैं कि यार मैं उठना तो नहीं जाता, कौन उठे 6 बजे 5 बजे, बट क्या करूँ, करना पड़ता है, इट्स विंटर सीजन, but I have to do that. Yeah, so in use of is to, am to, are to, you see that there is a needed. use of has to, have to, you see that there is a wages, मजबूरी है।
and in use of will have to and shall have to, you will see one difference, that is there is something force. Do you know what does this mean? Force. You will do anywhere by forcefully. मैं कहूँगा तुम्हें कल विद्यालय जाना पड़ेगा, सोच लेना नहीं जाओगे तो क्या होगा। तो होगा तो कुछ नहीं, बहुत पड़ेगी कुछ खाने को। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि आपको कल विद्यालय जाना पड़ेगा, तो वहां पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया है, नो दैट आई पोलाइटली रिक्वेस्ट यू दैट भाई जाना पड़ेगा। नो, दैट इज फोर्सफुली। आई सेड यू फोर्सफुली, बाय फोर्स। अर्थात कि हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, शैल हैव टू में मैंने उस टाइम ये दोनों इसीलिए एक साथ नहीं पढ़ाया था। मतलब तो आई थिंक मैं भी जानता था मैं आपका टाइम सेव कर सकता था भाई, लेकिन मैं इसलिए इसको डिफरेंस किया, डिफरेंट यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज को समझो। अगर उस टाइम बताते शायद आपको समझ में नहीं आती, बट अब बता रहे हैं, शायद आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। तो यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड यूज ऑफ विल हैव टू, शैल हैव टू में ये डिफरेंस है कि एक जगह मजबूरी दिखाई जाती है और जगह बाय फोर्स आपको फोर्स किया जाता है चीजों को करने के लिए। लाइक अ स्लेव मैन, डू यू नो व्हेन डू वी टॉक अबाउट इन द आई मीन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की जो लिटरेचर थे, 19th सेंचुरी मैक्सिमम भाई मुल्क आनंद को पकड़ लो अनटचेबिलिटी को लेकर के, तो वहां पे होता था ना छुआछूत, पहले होते थे ऐसे लोअर लोगों से मतलब क्या होता था, जो लोअर कास्ट के पीपल थे, लोअर कास्ट के जो भी श्रेणी में आते थे, जिसे जबरदस्ती काम कराया जाता था बाय फोर्स। नो यू हैव टू डू दिस वन, आपको करना पड़ेगा, और आपको बहुत एक लिमिट दे दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि आपको ये काम करना पड़ेगा तो 4 दिन में करके हटा, मतलब वहां से रिमूव कर देनी है, चीज़ों को फिनिश कर देनी है। नहीं, आपको इतने ज़्यादा आपको काम दे दिया जाता है, मतलब दे दिया जाएगा कि मतलब जस्ट यू विल फील इट that no yaar, just he's pressing on me. So this is the same use, that when this will you have, I mean you will use at that time when you will force, I mean do any work by forcefully or by someone, or make do by someone, yeah, or you have to do any work and also that is much needed like force or by force। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको कल गीत गाना पड़ेगा, अर्थात ये आपकी मजबूरी नहीं है, मजबूरी एक प्रकार से तो है, दैट इज राइट वन, गाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है करना तो पड़ेगा, लेकिन वहां पे मैंने आपको क्या किया, फोर्स किया, आपको फोर्स किया, मतलब आपको गाकर ही जाना है, गाना पड़ता नहीं है, मजबूरी वहां पे तो है बट लेकिन वहां पे फोर्स नहीं है, भाई फोर्स वहां पे है ही नहीं भाई। अगर मैं आपको कहा गाना पड़ेगा तो वहां पे क्या है, आपका फोर्स है। सो इन दिस यूज और वी कैन से इन सच ए यूज ऑलवेज यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू। या चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस को लेकर के। तो यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सेम वे, बस डिफरेंस जो था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया इन सारे लेक्चर्स, अभी इस लेक्चर में। तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, राइट, जिस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे आदि शब्द आते हैं, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली इस यूज को हम अगर एक टाइटल दे दें, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी होगा और पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कहूँ आपको आज विद्यालय जाना पड़ेगा, सीता को खाना बनाना पड़ेगा, राम को गीत गाना पड़ेगा, मोहन को यहाँ आना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे मतलब ऐसे वाक्यों के लिए हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा, यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू, बोथ नहीं, नहीं कि हम दोनों लगा दे एक साथ, भाई गलत हो जाओगे। क्या आपको इस यूज
का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। या चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस को लेकर के। आई होप दैट यू आर गेटिंग, आई मीन अंडरस्टैंडिंग दिस वन। भाई मेरे हिंदी पे मत जाना कोई भी, मैं जानता हूँ कि मेरी हिंदी की राइटिंग पुअर है, या सो डोंट गो ऑन माई हिंदी, जस्ट गो ऑन माई माइंड ओनली। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना सॉरी पड़ेगा कामा पड़ेगी, पड़ेगी मतलब समझ रहे हैं ना, सीता को कल काम करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं, तुम्हें यह काम करनी होगी, करनी होगी तो भी इसका यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि नहीं मैंने कहा कि तुम्हें कल वहां जाना होगा, अर्थात नो यार ये कौन सा यूज है, ये तो हमने बस विल हैव टू सेल हैव टू पढ़ा हुआ है, और होगा होगी तो कोई रूल है ही नहीं। तो ऐसा नहीं वहां पे फ्यूचर लगा दो, विल लगा दो, सेल लगा दो, यू विल बी रॉन्ग वन, है ना, आप रॉन्ग कर जाओगे। सो माइंड करिएगा इस चीज को, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, या होगा होगी होगे, होगा होगी एंड होगे, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी हिंदी में मत जाइएगा, होगा होगी हो गए हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, समझ जाइएगा भाई, समझदार हो आप लोग, है ना, हिंदी तो बोल ही रहे हैं, लिखना जरूरी थोड़ी है सारा। तो अब समझिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे या होगा होगी होगे आदि शब्द आते हैं, वहां पर हम यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसके साथ विल हैव टू लगेगा, किसके साथ शैल हैव टू लगेगा, डिपेंड करेगा हमारा किस पर, सब्जेक्ट पे, है ना। चलिए तो एक हम शॉर्टकट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव टू, शैल हैव टू। ऐसा नहीं है कि हमने बताया कि विद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, विद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ऐसे करोगे तो आप इधर हो जाओगे भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आई वी यू दे है तो शैल हैव लगा दे, इनिशिएटेड नाउन है तो उसको वहाँ पे हम विल हैव लगा दे, विल हैव टू, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कहा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसके साथ शैल हैव टू लगेगा। नेक्स्ट अगर हम ले लें, चाहे ही को पकड़ लें, सी को पकड़ ले, इट को पकड़ ले, भाई नाउन को पकड़ लो, मतलब पकड़ लो मतलब पकड़ लो नहीं, मतलब ले लो, ठीक है, या यू को ले लो, दे को ले लो, तो इन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, विल हैव टू का, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को लेकर के। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब समझते होंगे, यूपी बोर्ड की भाषा में अगर हम इसको बोले तो फार्मूला भैया, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। चलिए बहुत होगा ब्लू ब्लू ब्लू, है ना, गाना तो सुने ही होंगे, आज तो है पानी पानी, अब आते हैं ब्लैक वाले पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस माना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस क्या होगा हमारा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सा अगर हम और इलेबोरेट कर दें, आई होप कि अगर ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा और आसानी होगा समझने में। सब्जेक्ट हमारा भाई कोई भी हो सकता है, चाहे हम सिंगुलर सब्जेक्ट ले लें चाहे प्लूरल सब्जेक्ट ले लें। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब रहे भैया चाहे ए भी रहे, नो डिफरेंस, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, विल हैव टू एंड शैल हैव टू, शैल हैव टू, प्लस क्या होगा हमारा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट।
तो अब ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप बहुत इजी होगा आपको। अगर यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, खैर बातें तो बताऊंगा ही, अगर शायद टाइम नहीं मिला तो यही भी आप समझ लीजिएगा। जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे, जब भी हम इसका निगेटिव बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे ये एरो इसलिए मारा है, यहाँ पे इंडिकेट इसीलिए किया है कि ये हर एक यूज की भांति अगर ऐसे एरो निकाल दोगे ना, तो एग्जाम में ना ये दे करके आपको क्लीन कर देंगे। आ रही बात समझ में? रीजन है कि यहाँ पे जो विल और हैव है ना, ये हमको इसके मध्य में नॉट और नेवर लगानी है। अगर विल हैव टू है, ऐसा नहीं कि विल हैव टू के नॉट के बाद वर्ब लगा, नॉट लगा दे, है ना, आप रॉन्ग हो जाओगे भाई। समझ रहे हो ना? हमने आपको इज ऑफ हैव हैड पढ़ाया था, इज ऑफ इज सॉरी दिस दैट पढ़ाया हुआ है, दिस दोस पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर नहीं देखा जाएगा वहाँ पे देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि भाई हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट और नेवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें भी सेम रूल अप्लाई कर दो। अगर सेम रूल अप्लाई कर दिए तो आप पक्का है गलत हो जाओगे, फिक्स है आप गलत हो जाओगे। सो आपको नॉट और नेवर का प्रयोग कहाँ पे करना है? विल और हैव टू के मध्य में करनी है, और यहाँ पे शैल और हैव टू के मध्य में करनी है। तो विल नॉट हैव टू, शैल नॉट हैव टू, विल नेवर हैव टू, शैल नेवर हैव टू। समझ रहे हो? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें कि क्या मुझे कल विद्यालय जाना पड़ेगा, ठीक है। जाना तो कोई नहीं चाहता आजकल, पढ़ना कौन चाहता है यार, सही रास्ते पे देखा जाए तो, है ना, हर कोई चाहता है, टाइम है, हर किसी का समय आती है मौज मस्ती लेने का। चलिए हम बात करते हैं, कोई इसको पर्सनली मत लीजिएगा, जस्ट आई एम जोकिंग हियर। मैंने कहा मुझे कल विद्यालय जाना पड़ेगा, तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई, और हमने यहाँ पे बता रखा है आई के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल टू। चलिए आई को हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है सेकंड नंबर, वर्ब है थर्ड नंबर, बाकी सब फोर्थ नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा? शैल हैव टू। फिर हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। फिर हमारा हमने बताया हुआ था कि हम स्कूल के पहले टू का प्रयोग क्यों करते हैं। आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। भाई मैंने प्रीपोजिशन जो थी होती है, प्रीपोजिशन को लेकर के हमने बताया हुआ था, क्योंकि स्कूल आपका एक डेस्टिनेशन है ना, गोल है आपका। लिखते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, आई एम गोइंग टू फूलपुर, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू चेन्नई, आई एम गोइंग टू मुंबई। क्यों लगाते हैं टू उसके पहले? रीजन है क्योंकि वो हमारा क्या है? डेस्टिनेशन है, वो हमारा गोल है। आप शुरू अगर घर से निकलते हो ना, भाई हर किसी का लाइफ में गोल होती है, हर कहीं पे गोल होती है। आज आप पढ़ रहे हो ना, तो आपकी भी एक गोल है, समझ रहे हो? बिना गोल के कुछ होता ही नहीं है। खाना भी खा रहे हो ना, तो एक गोल है, पेट भर के चलना है आज, है ना। तो अगर आप घर से निकले कहाँ जाने के लिए? विद्यालय, तो क्या रास्ते में 10 लोगों से मिलके जाते जाओगे? नहीं ना। अगर आप घर से निकले, रास्ते में 50 लोग मिल जाएं, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या होगा? स्कूल। तो जो हमारा स्कूल है वो हमारा एक डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, तो माइंड इट। तो हमने यहाँ पे कहा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा जितना है बचा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे टुमारो है, ध्यान दीजिएगा, टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे टुमारो है कल का, और अगर परसों पूछ दिया जाए तो एक और मत मारो, मत करना, वहां पे टुमारो के एक और मारो हो जाएगा भाई हमारा परसों। आफ्टर टुमारो कर सकते हो, राइट, आफ्टर टुमारो, नॉट टुमारो के और मारो, दो मार दोगे तो नरसों हो जाएगा,
हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, and this video will much help you in your daily routines life, in your communication life, and whatever usage am I going to teach to all of you, please must note down this. I know that writings are some poor, but what am I going to teach you, what am I speaking here, yeah, must listen every word, yeah. So आज के लिए इतना ही। मैंने निगेटिव और नेवर का जो रूल था मैंने बता दिया। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है अब तो आप लोग बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे हुए हैं तो श्योर यू विल डू दिस वन, या। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वंस आई एम टेलिंग टू रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर, या। सो आई जस्ट वांट टू हेल्प एवरीवन यार। So everyone if you get, then it will be better for us. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.